जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां गुरु महाराज जी। और मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे गुरु महाराज जी। थोड़ा शुकराना ते थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई ही होवे गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी गुरु महाराज जी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, पूरे परिवार दा कल्याण करन दा शुकराना, सानू ये स्वास देन दा शुकराना, सानू ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना, पल पल ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना गुरु महाराज जी। तुहानू हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। साडे तो कोई भी गलती हो गई होवे गुरु महाराज जी, पूरे परिवार तो कोई गलतियां माफ़ करना गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 97 ਉਹ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਂਟ, ਬਟ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 2.5 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਰੈਡੀ ਖੜਾ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇਰਾ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ।
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਲੀਜ਼ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੈਨੈਂਟ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਜਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਮਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਣੇ ਆ ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਟਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਊ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਵੋ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ 0% ਚਾਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ 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 ਮਿਹਰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ 5-10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਮ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ। ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 45-50 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਡਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ 0% ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਰੋਮ ਬੋਟਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी हमेशा साडे अंग संग रहना, हमेशा साडी बांह फड़ी रखना गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। शुक्राना 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 शुक्र। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु का आदेश है कि कोई सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं मुझे। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, क्योंकि ये गुरु पाक का आदेश है। पुत्र संध्या वेला का शुक्राना कर, मैं आज तुझे जो दे रहा हूँ वो सुपर से भी ऊपर है। बोले तो तेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा और बेशकीमती भी। अगर तुझे कबूल है तो अभी शुक्राना कर। मेरा आज मेरे स्वरूप को 2-4 लोगों को शेयर कर दे, ज़रूर तुझे बहुत फ़ायदा होगा। मेरे दिल में बार बार तेरा ही चेहरा आ रहा है बेटा, यह आसान का ज़रूर करना। संगत जी, मेरे गुरु पा का स्वरूप अपने गुरु पा को मैं शेयर कर दिया, स्वरूप अपने ग्रुप में शेयर कर दिया। गुरु का मैसेज आया था, आंटी तूने मेरा जलवा अभी कहाँ देखा है, थोड़ा इंतज़ार कर, आज राती दर्शन दूंगा, पहचान ले मैनू। अब समय बदलने का टाइम आ चुका है। कुंडली के सभी दोष सुधार दिए हैं, गलती ना करी बिल्कुल भी। अब सब बदलेगा, वो भी रातों रात, इसे इग्नोर ना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरुपा ने कहा, इस बार तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जा आगे बढ़, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कुछ इस तरह मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं संकट जी। अपना शुक्राना सत्संग कहना चाहती हूँ। संगत जी, मैं और मेरे अंकल काफ़ी दिनों से बड़े मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे। फिर संगत जी, हमें 2 महीनों से ऊपर हो गए और हम जा नहीं पा रहे थे। पर संगत जी, हम नहीं जानते थे कि गुरुपा हमें हमारी सालगिरह पर बुलाना चाहते हैं। फिर संगत जी, हमारी सालगिरह दिसंबर में थी, 15 दिसंबर, और उससे पहले जो सोमवार पड़ता है, हम उसी दिन बड़े मंदिर गुरुपा के दर्शन के लिए गए। और संगत जी, गुरुपा ने हमें बहुत प्यारे दर्शन दिए। जब गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर हम लंगर हाल गए, वहाँ पर लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। संगत जी, हम प्रसाद लेकर बैठे थे और
मुझे एक समोसा मिला जो काफ़ी फूला हुआ था। समोसा मैंने जैसे ही समोसा प्रसाद करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरा समोसा अंदर से खाली है और उसमें आलू वाला मसाला नहीं था। मैंने देखा कि सभी संगत के समोसों में आलू था, पर मेरे समोसे में कोई आलू का मसाला या और किसी भी तरह का मसाला नहीं था। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों हुआ? मगर वह समोसा बहुत ही टेस्टी और करारा और फूला हुआ सा था। संगत जी, फिर मुझे याद आया कि मैं वैसे भी जब भी घर में समोसा खाती हूँ, तो मैं अपने समोसे के आलू या उसका मसाला निकाल के रख देती हूँ। मुझे मसाला खाना पसंद नहीं है। सिर्फ़ मुझे उसके जो चारों तरफ से जो कोने वग़ैरह होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और यह समोसा बहुत ज़्यादा करारा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। गुरुपा को जैसे पता था कि मुझे ये मसाला खाना नहीं अच्छा लगा। संगत जी, गुरुपा हमारी कितनी छोटी-छोटी ख्वाहिशों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। यही सोचकर मैं हैरान थी। मुझे समोसे में आलू खाना पसंद नहीं होता, यह तो किसी को भी पता नहीं था ना। तो यह तो किसी को पता नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? मगर यह तो मेरे गुरुपा की असीम कृपा है। संगत जी, मेरे गुरुपा ने अपने हाथ से मुझे वह समोसा दिया है। उनके सिवा यह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि मेरी बेटी आज अपने मायके आई है और उसे मैं कोई तोहफ़ा दूँ उसकी सालगिरह पर। तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से मुझे ये समोसा प्रसाद दिया है। मैं जानती हूँ इतनी संगत में वही प्रसाद मुझे मिलना यह साबित करता है कि वह खास गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा तो जानी जान है। मेरे प्यारे गुरुपा संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला है या मुझे से कुछ कहना नहीं आ रहा, तो कृपा मुझे माफ़ करें। मगर मैं जो कुछ बोल रही हूँ, वह मेरे गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। गुरुपा का ही आदेश है कि बेटी शुक्राना कर। और मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, समोसा प्रसाद के लिए अनंतम शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम शुक्राना, अपना आशीर्वाद देने के लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना। जैसी कृपा आप मुझ पर कर रहे हैं गुरुपा, सारी संगत पर करना, करना और ओम सभी को नमः ब्लेस शिवाय। करना। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा जो अमृत वेला शुक्राना सत्संग है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है। गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग समर्पण कर रही हूँ। संगत जी, जब से अमृत वेला का सेवा गुरुपा ने बख्शा है, तब से जीवन में जो एक पॉजिटिविटी आई है, जीवन में एक जो सुकून आया है, वो पहले कभी महसूस नहीं किया हमने। जो वक्त जो 2:30 से 3 बजे का हो या 3 बजे से जो एक वक्त होता है, वो ऐसा समय होता है जब इंसान को गहरी नींद आती है। और उस वक्त आज हम उठ के गुरुपा के लिए
गुरुपा के सामने बैठ के, हम उनके सामने बैठ के अरदास करते हैं, शब्द बानी सुन रहे हैं और गुरुपा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं संगत जी, तो इससे बड़ा सुकून और शांति और कहाँ है संगत जी। जिन संगत ने अमृत वेला की होगी उनको आज पहले की ज़िंदगी में और आज की जो लाइफस्टाइल है आज के समय में, उन्हें बहुत अंतर महसूस हुआ होगा। संगत जी, मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले मैं इतना, जो आज मैं जितनी सुकून में हूँ, शांति में मैं अपने आप को महसूस कर पा रही हूँ अंदर ही की, अंदर में मेरे जो पॉजिटिविटी और जिसकी वजह से मैं अंदर इतना सुकून और शांति के अनुभव कर पा रही हूँ, इतनी खुशियाँ हैं जो मेरे लाइफ में इतने लंबे टाइम तक मैंने कहीं मुझे महसूस नहीं हुआ। हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी तो हमेशा रही ही है, आज भी है, लेकिन पहले वो चीज़ें नहीं थी। अंदर जो एक संतोष की भावना होती है, अंतरात्मा को एक जो सुकून मिलता है, वो पहले नहीं था। लेकिन आज जो एक हमारी अंतरात्मा में जो खुशी है, सुकून है, वो गुरुपा की वजह से है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें अमृत वेला का सेवा बख्शा है। संगत जी, आज जब मैं यूट्यूब चैनल ओपन कर रही थी तो गुरुपा का मैसेज आया और बहुत, गुरुपा का जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत ही अलग सा होता है ना गुरु संगत जी। उसमें गुरुपा ने बताया कि तेरे मन के एक गलत विचार किस वजह से आ रहे हैं, वो आज बता रहा हूँ। कोई आया था तेरे घर, सत्संग सुन, कल तेरे गुरु का वार है, कल मैं आऊँगा तेरे घर, तेरे बच्चों को मेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, कल मेरे लिए भोग जरूर लगाइए। गुरुपा आपका घर है, आपको जो खाना, गुरुपा आप एक बार कहिए तो मुझसे, आपकी बेटी से जो बन पड़ेगा मैं बनाऊंगी गुरुपा आपके लिए। और मैं बेसब्री से चौखट में खड़ी होकर आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा कब मेरे घर आएंगे गुरुपा। तो उस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा। तो आपका घर है, आप जब भी चाहें गुरुपा, आप हमेशा हमेशा, जब भी नहीं, आप हमेशा मेरे घर में वास करें गुरुपा। आपके आने के बाद जो ज़िंदगी में इतनी बड़ी चेंजेस आए, परिवर्तन आया है, वो पहले कभी ना था। तो इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किस मुँह से शुक्राना करे गुरुपा। हम इंसान भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं और आज भी जी रहे हैं, है ना संगत जी। हम सारे लोग भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो गुरुपा से मिलने के बाद ही पता चला कि हमारी ज़िंदगी की एक्चुअली मकसद क्या है। तो ये जो गुरुपा ने हमें जो दात बख्शी है, ये सचमुच संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हर किसी संगत के लिए। और मुझे लगता है कि ये गुरुपा के ही हम लोग जो होते हैं ना, भोले बाबा के शिवगण जो होते हैं, तो हम उन्हीं शिवगणों में ही हैं कहीं पर। तभी तो गुरुपा ने हमें अपनी संगत में, एक मुट्ठी भर संगत में जोड़ा है। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमारा हाथ थामा गुरुपा, हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दी, हमारे ज़िंदगी से सारी नेगेटिव चीज़ों को निकाल कर आज हमें एक पॉजिटिव फीलिंग्स देने के लिए, अंदर की अंतरात्मा में जो एक सुकून शांति है उसको देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आप हर एक जगह में, हर एक रूप में आप हमें दर्शन दे रहे हैं, दर्शन देकर हमें जो ब्लेस करे, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा गुरुपा बहुत बहुत आपसे मिलने के बाद सचमुच जीवन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी।
जय गुरुजी, मैं ये सत्संग अपना लीना आंटी और राज अंकल के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 1 जनवरी नया साल, सारी संगत को नया साल मुबारक हो, सबको अपार खुशियाँ मिले, सब पर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे, सबके घर में खुशियाँ रहे, आशीर्वाद रहे, गुरुजी की कृपा से सब संगत खुशियों भरा साल रहे और सब मस्त रहे, आबाद रहे। गुरुजी महाराज की कृपा से सारी संगत के ऊपर दया रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरा मंडे का है। उस दिन शिव जी का दिन था और मैं चांदनी चौक गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। हम वहाँ पे कपड़ा खरीदने के उस पर्पज से गए थे। वहाँ बेटे की शादी है तो उसके लिए कपड़ा खरीदने के लिए गए थे। हम चांदनी चौक में इधर उधर घूम रहे थे, सोच रहे थे कि कपड़ा कहाँ से खरीदे और एक दुकान मिली, हम उसमें गए तो वहाँ पे देखा तो गुरुजी का स्वरूप लगा था। मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं घर से निकली तो भी मैं बोल के गई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना और सब अच्छे से रहना। और आप जानते हो संगत जी, गुरुजी हमेशा सदा सहाय रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं और सबका भला करते हैं, हर सब संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। सॉरी संगत जी, मेरी आवाज़ अगर जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा बोला जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना। और फिर हम वहाँ पे कपड़े लेने लगे तो एक अंकल आए और वो हाथ जोड़ कर बोले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बोली माँ गुरुजी, अंकल आप भी गुरुजी की? कह रहे हाँ हम भी गुरुजी की के नाम से ही ये दुकान शॉप है और इसमें गुरुजी की ही कृपा है। तो मैं बोली जय गुरुजी। फिर उन्होंने हमारे को चाय प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद खिलाया और बड़े अच्छे से उन्होंने हमारे से बात करी। ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद था। चलते वक्त तक उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी और भगवान गुरुजी महाराज उनकी दुकान पर को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और गुरुजी महाराज जहाँ भी हैं बहुत अच्छे से सब सारी संगत का ख्याल रखते हैं। गुरुजी मेरे संगत में सत्संग करने में कोई भूल हो जाए तो सारी संगत माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग यहीं पे समाप्त होता है, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और ये मैं सत्संग अपना लीना आंटी और राज अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने कई चैनलों पे अपना सत्संग शेयर किया लेकिन किसी ने भी मेरा सत्संग आगे नहीं सुनाया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ सब अंकल आंटी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलने में मेरे से कोई भूल होगी हो तो सारी संगत से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। जय ओम नमः गुरुजी, शिवाय, शुक्राना शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मैं चेतन पुना से मेरा ये संध्या वाला सत्संग आज 8 जनवरी को लीना आंटी और राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। मेरा ये सत्संग गुरु पितामह के चरणों पे अर्पण करता हूँ। गुरु पितामह स्वीकार कर लीजिए। गुरु पितामह, मैं या मेरे परिवार जो भी कोई जन्म में, पिछले जन्म में, कोई जन्म में अगर किसी को भी हर्ट किए हैं या दुख पहुंचाए हैं, हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी और प्रायश्चित का रास्ता दिखा दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हर पल, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना हर दिन के लिए, शुक्राना हर चीज़ के लिए, शुक्राना गुरु पितामह। गुरु पितामह, आप मेरे पिता माँ हो, मेरे गुरु हो, मेरे सब कुछ हो।
शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्राना। सत्संग जी, मैंने पिछले सत्संग में 2024 दिसंबर में मैंने गुरुजी से अरदास लगाया था कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, रास्ता दिखाइए। तो गुरुजी ने ये मैसेज फ्लैश कर रहे थे कि तुमको मैं नया घर ब्लेस करूँगा, नया गाड़ी ब्लेस करूँगा और तुम्हें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगा। तो मैं हमेशा ये प्रार्थना करता था कि मेरा और आपका प्यार जहाँ बढ़े वहाँ मुझे लेके जाइए। जहाँ भी हो, कैसे भी हो, जहीं पर भी हो, मेरा और आपका प्यार बढ़ना चाहिए। सत्संग जी, मैंने पैसे की तंगी के वजह से बहुत टेंशन में था और मुझे हमेशा ये लग रहा था कि गुरुजी बता रहे थे कि जो तेरे साथ अच्छा होगा वही मैं दूंगा और 7 तारीख को ये चमत्कार होएगा। मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी मुझे प्रोजेक्ट दिलाएंगे। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तुमको जो अच्छा होगा मेरे हिसाब से मैं वही दूंगा। तो सत्संग जी, सच में चमत्कार हो गया। 7 तारीख को मैंने गुरुजी के सामने पर्ची डाली थी कि मैं पुणे में रहूं या बीजापुर मेरे होम टाउन चले जाऊं। गुरुजी के पर्ची में ये निकल आया कि तुम होम टाउन चले जाओ। मैं बहुत खुश हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन सत्संग जी, गांव जाने के लिए न मेरे पास पैसा था, न पैकिंग के लिए कोई लोग थे, न गाड़ी था। लेकिन सिर्फ एक दिन यानी कि आज का दिन मैं गुरुजी ने सब एडजस्ट कर दिया। गांव जाने के लिए गांव से ही 407 मंगाए और गांव से ही लोगों को एडजस्ट किए और उनको आने जाने के लिए पैसे भी एडजस्ट किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये चमत्कार नहीं तो क्या था। गुरु सत्संग जी, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ 3 साल से करीब, और 1.5 साल हो गया गुरुजी आके। अकेले रहने के वजह से मैं गुरुजी को और अपने गोपाल को सिर्फ दूध, चाय और ड्राई फ्रूट्स भोग लगाता था और मुझे बहुत बुरा लगता था कि स्वयं महादेव गोपाल को मैं क्या भोग लगा रहा हूँ। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि तुम मेरे को मन से मानो, और ये मेरी जिंदगी पूरा आपको सरेंडर कर चुका था। लेकिन सत्संग जी, आप सोचिए कि मैं कैसे लगता रहेगा कि गुरु को और गोपाल को सिर्फ चाय और ड्राई फ्रूट्स पे भोग लगाता था 1.5 साल। गोपाल जी को तो 3 साल हो गया करते करते। लेकिन गुरु पितामह का इतना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। इतना प्यार स्वयं महादेव जो ड्राई फ्रूट्स पे इतना प्यार, बहुत प्यार किए, बहुत। लेकिन जो भी भोग लगाए वो खुश थे। इस अनाथ का आपने स्वीकार किया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। इस अनाथ का हाथ पकड़े आपने, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि। कितना भी शुक्राना करूं कम में, कितने जन्म में भी मैं आपको शुक्राना करूं कम में गुरुजी, कम में। शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा बोलते थे
कि ऐसा प्यार करना, मेरे हाथ पकड़ना और मेरे परिवार को रक्षा, खुशियाँ सब आपके अर्पण हैं। और गुरुजी, गांव जाने का सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है मालूम है आपको? कि मैं आपको अच्छा भोग लगा पाऊंगा, गोपाल को अच्छा खाना खिला पाऊंगा। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। इसके बाद जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। लेकिन गुरुजी, एक तरफ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे स्टाफ, जिसको मैंने अपने परिवार जैसे देखा है, अभी तो वो आपकी स्टाफ है, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं। मेरा बिजनेस आपका है, आप मालिक हो। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो। बस उनके पेमेंट करके निकल गए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप इसका हल जरूर निकालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, गुरुजी सच बोलते हैं कि मानो, भले कोई भी कैसे भी परिस्थिति में है, बस उनको मानो। उनको आप, मतलब मेरे केस में तो मैंने उनको कुछ भी भोग नहीं लगाया था, और मेरी हालत तो जानते हैं कि मैं कैसे रह रहा हूँ। इसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ चाय प्रसाद। तो इतना प्यार, इतना प्यार तो मतलब मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। और गुरुजी, मैं कभी भी इसके आगे आप जो बोलेंगे वही होगा, आप जो बोलेंगे वही होगा। और मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखिए, जन्म जन्मांतर पकड़ के रखिए। मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना। मैं आपको किस किस चीज के लिए शुक्राना बोलूँ गुरुजी? हर पल शुक्राना आपको, हर पल। आपने एक पिता जैसे मुझे प्यार किए, हर चीज में, हर चीज में। यही प्यार बस है गुरुजी, यही प्यार बस है। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग का विराम देता हूँ। लीना आंटी और राज अंकल को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग गुरु जी हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ हैप्पी न्यू ईयर। ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ हैप्पी न्यू ईयर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੋ ਕੰਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु प्यारे जी सदा सहाय। जय माँ काली। जय गुरु जय जी, माँ काली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं पूर्णिमा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 13 तारीख है, 13 जनवरी। तो मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। पहले ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा इधर से काफ़ी दिन से रोज सत्संग आ रहा है। किचन में कुड़िए अच्छे से काम कर, ध्यान लगा के काम कर अच्छे से। कुछ हादसा होने वाला है, इस तरह से मैसेज आ रहे थे। तो मुझे भी डर लग रहा था कि मैं क्या चेक करूं नहीं करूं। मैं रोज़ सिलेंडर भी चेक करती और जल्दी से बंद कर देती। कभी सिलेंडर खोलती तो ज़्यादा आवाज़ ही करती, तो मैं फिर से सिलेंडर चाबी बंद करती और सिलेंडर से फिर खोलती डायरेक्ट, तो वो आवाज़ कम हो जाता। तो इस तरह से होने लगा। तो हमको भी डर लगता था कि गुरुपा रोज कहते अलर्ट रहो, तो पता नहीं क्या कुछ है, तभी तो गुरुपा कहते हैं। तो इस तरह से मैं इधर से काम निपटा ली तो कुछ नहीं हुआ। और फिर मेरा कल मेरा 12 तारीख का गैस भी ख़त्म हो गया। तो जो कल मैं गैस मैं खुद ही लगाई। तो मैं तो पहले भी बताती हूँ कि गुरुपा कहते हैं मैं तेरे अंग संग हूँ, तू मेरे नज़रों के अब तू मेरे नज़रों के सामने है और तू मेरे नज़र में है। तो कोई भी काम हो तो गुरुपा को याद करो तो गुरुपा फट से वो काम कर देते हैं। तो ये यकीनन है, ये आपका विश्वास है, तहे दिल से विश्वास है। ये मेरे गुरुपा मेरे सारे काज संवारते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो आज का मैं सत्संग शेयर कर रही थी। तो आज मैं लेट से उठी। सुबह जब मैं उठी तो मेरे पेट में थोड़े से गैस बन रहे थे और उठने का भी मन नहीं कर रहा था। पर गुरुपा से रोज मैं कह के सोती हूँ, गुरुपा सवेरे उठा देना। तो गुरुपा हमको 3 बजे, पौने 3 बजे जगा देते, तो मैं जग जाती हूँ, पर मैं बेड पे ही रहती हूँ। उस समय मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुपा का मैसेज देखती हूँ, और नहीं तो सत्संग नहीं होता है तो मैं गुरु जी का ये क्या कहते हैं सुखमनी साहब का पाठ लगा देती हूँ, जपजी साहब का पाठ लगाती हूँ, और गणेश चालीसा गणेश जी का जो मंत्र है वो लगा के सुनती हूँ, नहीं तो मंत्र गुरुपा का सुनती हूँ। इस तरह से मैं सुनती हूँ। और जब गुरुपा का लगातार जब आता है कि मैं सत्संग रात में नहीं सुन पाती हूँ, दिन में नहीं सुन पाती हूँ, तो सुबह एकदम फटाफट सत्संग आने लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, गुरुपा कह रहे हैं तुम दिन में नहीं सुन पाती हो, टाइम नहीं मिलता, अभी तो तुम सुन सकती हो, तो सुन करके अपना जो कष्ट है कटवा ले। तो मैं सत्संग ही सुनने लगती हूँ। तो इस तरह से मेरा सुबह हो जाता है। फिर मुझे सुबह में नींद आने लगती है तो मैं थोड़ी सी मैं सो भी जाती हूँ। इस तरह से मैं इधर से सवेरे ना उठ करके मैं बहुत लेट से उठ रही हूँ। अब तो 1 सप्ताह जाने वाला है, मैं बहुत काफ़ी लेज़ी हो गई हूँ गुरुपा।
मैं रोज़ गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा मुझे फटाफट सुबह उठाइए, मैं 8 बजते बजते पूजा वगैरह करके फ्री हो करके मैं अपना घर का काम काज करूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। मैं 9 बजे उठती हूँ, 9:30 बजे उठती हूँ और उठने की इच्छा ही नहीं होता है। जैसे लगता है कि पता नहीं, लगता है अब कुछ है ही नहीं करने के लिए, बस ठंडे से उठने की इच्छा ही नहीं होता है। गुरुपा सब जानते हैं, पता नहीं गुरुपा को एक ऐसा कोई कष्ट ही कटवा रहे होंगे, इसीलिए ये तो सब गुरुपा की मर्जी से ही होता है। तो मैं सवेरे उठी तो फिर मेरे अंकल जी बोले उठो पानी पियो, तो मैं बोली कि पेट दर्द कर रहा है, तो जमाइन ला के दिए और गर्म पानी ला के दिए। तो मैं गर्म पानी और जमाइन को खा करके थोड़ी देर लेटी, फिर मैं थोड़ी देर सत्संग सुनी क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था और उसमें था ही नहीं बैठी। फिर मैं चार्ज में लगाई, मैं थोड़ा सा सुनी, फिर मेरे आंटी का क्लास शुरू होने वाला था, तो इस तरह से मैंने मोबाइल दे दी। तो मैं आज मोबाइल मेरे पास रहा ही नहीं समझिए। बाद में थोड़ा सा ली तो थोड़ा सत्संग सुनी, नहीं भी सुनी, इस तरह से मेरा आज इसी तरह से दिन मेरा कट गया। फिर मैं छोड़ दी कि ये अपना क्लास करेगी, तो मैं फटाफट उठी कि मैं जाती हूँ सब्जी बना लेती हूँ तब नहाऊंगी, क्योंकि नाश्ते में सबका लेट हो जाता है, खाने में भी। तो बस मेरा पेट दर्द कर रहा था तो हम चले गए। तो फिर हमको फ्रेश होने जाना था तो हम चले गए और फ्रेश करके फिर मैं नहा वगैरह ली। नहा के आई तो मेरे दिमाग से स्किप कर कि आज पूर्णिमा है, तो मैं गुरुपा से गई, गुरुपा पता नहीं आज क्या करवाने, मगर आज मंडे ये याद है हमको कि आज मंडे हमको मंदिर जाना है। गुरुपा कहते हैं मंडे को मंदिर आ करके दूध और पान के पत्ते चढ़ाने के लिए अपनी इच्छा है। तो मैं गुरुपा से कही, गुरुपा मैं नहीं जानती मेरी इच्छा क्या है नहीं है, आपके सामने जाती हूँ, मेरी इच्छा है सब खत्म हो जाती है, बस लगता है यही मेरी इच्छा थी आपसे मिलने का, आपको पाली, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी। तो मैं गुरुपा से यही कि आप जानिए गुरुपा मेरी क्या इच्छा है, क्या कमी है नहीं कमी है वो आप जानो। मैंने ऐसा करके चली गई और मैंने घर में सब पूजा वगैरह करके भोग वगैरह लगा के गुरुपा को कॉफ़ी भोग लगा के और मैं बादाम की लड्डू लगाई और लड्डू गोपाल को भी भोग लगा के नहा करके मैं चले गई मंदिर। मंदिर जब जाने लगी तो रास्ते में वाइट कलर का बटरफ्लाई, तो क्योंकि गुरुपा को मैंने साथ गए कि गुरुपा चलिए आप पूजा करा के आप खुद लाइएगा, तो वाइट कलर का मैंने बहुत शुक्राना किया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो हमको रास्ते में गुरुपा ब्लेसिंग दे दी और फिर हमको सेवन का ही ब्लेसिंग तो गुरुपा हमको देते ही है। और मैं गुरुपा की हूँ तेरा बेटी, तो तेरा तेरा का हमको ब्लेसिंग मिल ही जाते हैं, तो शुक्राना गुरुपा। फिर मैं मंदिर गई, मैंने फूल खरीदे और फिर मैं जब गई कि आज मैं तिल का लड्डू लेके चढ़ा दूंगी, तो मैंने सोचा कि सफ़ेद वाला तिल का लड्डू मिलेगा, तो वो काले काले तिल की लड्डू थी। तो पर गुरुपा बता रहे थे ये जनवरी भर काले चीज़ को घर नहीं लाने का और न ही लेना है, तो वो 30 रुपीज़ बोल रहे थे। तो मेरे पास 30 रुपीज़ ही था, तो मैंने कि नहीं वो तो पहचानते हैं, मुझे उधार भी नहीं लेना है और नहीं लेना, फिर मैं फूल फिर उधार क्यों लूँगी, मैं इसी में कर लूँगी। तो काम तो बोले छोड़ दीजिए हमको लड्डू दे दीजिए, तो मैं लड्डू ले ली और मैंने फिर फूल ले ली। फूल लेके अंदर गई पूजा करने के लिए। मैंने गणेश जी को पूजा की, लड्डू चढ़ाए, फिर दिए जलाए और फिर प्रणाम वगैरह करके फिर आई मैं भोलेनाथ को पूजा की। देख रहे तो उस समय आंटी लोग पूजा कर रही थी और सफाई भी कर रहे थे। तो आज सब लोग, आज पूर्णिमा है, शाम को शिव चर्चा होगा। तो इस तरह से फिर मैंने पूजा की। एक आंटी हमको देख के मुस्कुराई तो मैं भी स्माइल कर दी। फिर पूजा वगैरह की, मैंने सब पान के पत्ते चढ़ाए, दूध चढ़ाए, फूल चढ़ाए, मैंने अच्छे से पूजा किए, दिए जलाए और आरती भी गाए और कपूर गौरव मैंने आरती गा करके गुरुपा को प्रणाम किए। उसके बाद नंदी जी को पूजा किए। उसके बाद कान में मुझे याद आया कि
बोलते हैं गुरुजी नंदी जी के कान में अपना विश बोलो। तो मैंने भी विश क्या बोलती, फिर मुझे याद आ गया कि ये सब बोलना है, तो बस मैं भी बोल दी फटाफट पैर मैंने। और फिर बाद में मैंने गुरुजी का मंत्र कान में बोल दी और कह दी मेरा शुक्राना गुरुपा के पास पहुंचा दीजिए। तो और नंदी जी को फिर प्रणाम करके मैंने राधे कृष्ण को पूजा की। फिर उसके बाद शीतला माँ को, फिर बजरंगबली को गुरुजी बोल रहे थे 21 दिन हनुमान जी मंदिर जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ना है एक बार जाके रोज। तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिए, हनुमान चालीसा पढ़ लिए और मैंने पूजा वगैरह करके फिर मैंने पीपल गाछ में पूजा करके और चीटी लिखो। गुरुपा कहते लड्डू का पीले, लड्डू का बोला, बस मेरे पास लड्डू खत्म हो गए थे तो मैंने इलायची दाना मिश्री थे वो मैंने डाल दिए पेड़ पर, वो चीटी खा लेंगे। और बस गुरुपा जैसे जैसे हमसे करवाए वैसे वैसे मैंने कर लिए। मैंने काली तिल ले गई थी, मैंने वो पूजा कर ली उससे। और उसके बाद मैं जब निकलने लगी तो 3 लड़के हमको दिखे, 3 बच्चा था और वो मंदिर से बाहर निकला। फिर वो प्रसादी लेने के लिए बाहर निकले होंगे कि जो जो सब लोग पूजा करके जाते हैं ना, कुछ कुछ प्रसाद जाते हैं ना, वो उठा रहे थे तो उसको कुछ नहीं मिला वहाँ पे। फिर वो जहाँ पे फूल सब पूजा करके बाहर डालते हैं तो वहाँ पे देखे बच्चे लोग खोज रहे थे। फिर हमको लगा कि नहीं ये 3 है तो ये कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, शायद ये गुरुपा कहते मैं किसी भी रूप में आवांगा मुझे पहचाने तो वो गुरुपा ही होंगे। तो नहीं तो मैं बिस्किट लेने चले गए कि नहीं ये कुछ खोज रहा है तो नहीं मिल रहा है, चलो मैं बिस्किट खरीद लेती हूँ। तो मेरे पास पैसे थे तो मैंने 2 पैकेट बिस्किट लाई। फिर मैंने फाड़ फाड़ के मैंने बिस्किट दिए और फिर उसमें से 3 बच गए। तो मैंने देखा गाय गौ माता आज पूर्णिमा है तो मैं तो रोटी कुछ लाई नहीं थी, मैंने एक गाय बछड़े को खिलाई। फिर एक छोटी बछड़ी थी मैंने उसे 2 बिस्किट खिलाए, इस तरह से मैंने खिलाए। फिर एक छोटी आंटी थी जो फूल बेचती उसकी बेटी थी तो वो शायद बिस्किट मैंने वो बच्चे को दिए तो वो भी इसी तरह से भाग गया कि हमको भी मिलेगा, पर मेरे बिस्किट तो ख़त्म हो गए थे। फिर मेरे पास थे 5 रुपये बचे हुए थे तो मैंने पैसे लेकर के फिर मैंने दुकान से बिस्किट ला करके उस लड़की को बच्ची को मैंने वो बिस्किट देते गुरुपा। इसी तरह से मैंने गुरुपा पे छोड़ दिए थे। सब गुरुपा अपने आप, जो मैं क्या करूँगी बस गुरुपा मेरे अपने अपने सब कर लेते हैं। ये तो गुरुपा देने वाले हैं, कराने वाले गुरुपा, बस हम लोग तो इशारों पे नाचते हैं। बस मैं तो गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ, कहते तो मेरी प्यारी दी है। और बता रहे थे कि तेरे अंकल पे बहुत बड़े कष्ट है, ये सत्संग सुन के कटवा। तो मैंने सत्संग भी सुने थे मगर बहुत सारे सत्संग आ रहे थे तो मैंने उसमें से उतने सत्संग मैंने नहीं सुन पाई। तो बता रहे थे तो आज जो मैंने सब्जी छोके थे ना गैस पे चढ़ाए थे मैंने नहीं बना पाई। तो फिर अंकल मेरे नहा के आए ना तो मैं पूजा करने नहाने चले गई तो मेरे अंकल सब्जी बनाए। तो जब मैं चली गई पूजा करने के लिए तो मेरे अंकल को मन हो गया कि अचार खाएंगे। तो वो ऊपर वाले रैक पर है अचार की बरनी, शीशे की है। जब वो उतारे ना तो उनके हाथ से मतलब पटका गया, वो मतलब नीचे भी नहीं गिरा पर गुरुपा लगता है बहुत बड़ा कष्ट ही होगा। तो उस जार पर गुरुपा कष्ट दे दिए और अंकल जी सुरक्षित हैं। और जब मैं आई कि देखते हैं शीशा तो कहते हैं क्या बरनी टूट गया। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं हम कर देंगे। वो साफ कर रहे थे, उनके रहने दीजिए आप खाना खा लीजिए हम सफाई कर देंगे। तो इस तरह से गुरुपा आज अंकल जी के कष्ट ले लिए। एक बरनी पे आया तो बोल रहे थे बहुत बड़ा कष्ट है कुड़िए। और इस तरह से पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट होगा जो गुरुपा छोटे में काट दिए। तो मैंने अंकल जी को भी कहा गुरुपा आपके कष्ट ले लिए अपने पर और छोटे कष्ट में आपको डाल दिए, पता नहीं क्या होने वाला था। तो रोज मैसेज आता था। तो इसी तरह से जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब फिर मैंने रात में पीठा बनाई, क्योंकि आज पूर्णिमा हो गई, उसके बाद माघ आ जाता, पुष में पुष पीठा खाया जाता है हम लोग में। तो मैं बनाई ही नहीं थी, कुछ तबीयत कभी खराब, कभी कुछ हो जाता, तो मैं बनाई नहीं। तो मेरे घर में बना था, तो मैं भी सोची, मैं गई नहीं तो मैं भी थोड़ा सा बना लेती। मैं शाम को तो बर्फी लेने के लिए, नहीं, खोआ लेने के लिए बाहर निकली, तो पर खोआ नहीं मिला। तो मैंने आगे जाके पुल के पास गई, तो वहाँ पे से 5 बर्फी लाए खोए वाले। तो वहाँ पे 2 बिल्लियाँ थी, और मेरी आंटी को बहुत प्यारी लगने लगा कि मम्मी इसको घर ले जाएंगे। रास्ते जब आगे बढ़ गए तब बोली बहुत प्यारा लग रहा था, हमको लेना है। घर आके गुरुपा को कहते, गुरुपा देखिए मैंने पिक्चर ली, यही वाला हमको बिल्ली चाहिए, देख लीजिए, यही वाला देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, और हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नंबर। गुरुपा को बोलती है। तो गुरुपा जाने और अपनी नतनी की बातें वो जाने, तो वो बिल्ली के लिए थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई, और बोली मम्मी हमको यही वाला बिल्ली चाहिए। तो पापा को बोलती है, तो पापा बोलते हैं हाँ बिल्ली नहीं पाला जाता है। तो इसको मन था कि हाँ हम बिल्ली पालेंगे। तो इस तरह से गुरुपा किए। फिर मैं घर आ गई, तो घर आके समोसे अंकल जी लाए थे, गुरुपा को भोग लगा के फिर हम लोग समोसे खाए। आज मंडे को समोसे खाए। उसके बाद हमने क्या, अब फिर मंदिर वहाँ पर से मैंने नारियल वगैरह लगाया, तो पीठा की तैयारी करने लगा। मैंने तिल भूंजा, फिर नारियल कसे, फिर पीठा की तैयारी की, फिर मैंने पीठा बना के गुरुपा को भोग लगाए। उसके बाद अंकल जी को दिए, आंटी खाई, हम खाए। इस तरह से मेरा आज का ये सत्संग हो गया। तो गुरुपा को बोले, गुरुपा हमको क्या आज पीठा नहीं खिलाएंगे क्या? तो गुरुपा हमको आज पीठा खिला ही दिए बना करके। तो की पीठा ही बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। आज गुरुपा बोल रहे थे, आज लोहरी है गुरुपा का। तो बोले आज तेरे सारे रोग जितने भी सब इस लोहड़ी में मतलब भस्म कर देंगे। आज तेरे बेटी का भी जितने भी नजर दोष है सब भस्म हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम इस लोहड़ी पर्व का कोटि कोटि शुक्राना। सब संगत को जय गुरु जी, शुक्राना इसी गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।